Good evening, students. In this chapter, we are going to learn about wave optics. And in the first video of this chapter, I will be giving you an introduction of how the wave theory of light came into existence. So, up till the year 1637, initially Newton believed that light is made up of corpuscles. So it was up till the year 1637 that it was believed that light was made up of corpuscles and that it travels in straight lines. As you've already read that light travels in the form of rays. So in these rays there were some finite sized corpuscles. So this was what was believed up till the year 1637 and ये न्यूटन की भी मैकेनिक्स में जो क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स भी इसी थ्योरी को सपोर्ट करती थी. लेकिन इस थ्योरी से हम कुछ लाइट के फिनोमिना जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन दो फिनोमिना को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाए, जिसमें लाइट रेज की फॉर्म में ट्रेवल करती है और इंसिडेंट लाइट जो है वो एक इंसिडेंट रे की फॉर्म में हम लेते हैं एंड देन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड and then we say that the angle of incidence is equal to the angle of reflection and that both the angle of both the incident ray and the reflected ray and the normal, they all lie in the same plane. So the laws of reflection could be easily proved by considering the light to travel in the form of rays and each ray is composed of corpuscles. Then even the phenomena of refraction, in which when light travels from one medium to the other medium, light जब इस मीडियम से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है और मान लेते हैं पहला मीडियम हमारा रेयरर है, दूसरा मीडियम हमारा डेंसर है, तो अगर चेंज ऑफ मीडियम है देन देयर इज अ बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट and this bending depends upon whether the medium in which the light is entering, it is denser than the previous one or it is rarer than the other one. So if it is denser, then the light will bend towards the normal. This you all know, and this angle is known as the angle of incidence and this angle is known as the angle of refraction. So both these phenomena of light could be easily explained using this theory. But then slowly there were some other phenomena which were observed, like one of them was interference of light. Interference of light. Then there was another phenomena known as diffraction of light. Right? These are the two different phenomena. We will be studying in more detail what are these two phenomena and what was observed. I will also try and show one experiment based on interference here also if it is possible for me. I will definitely show that. Then these two phenomena, then there was another phenomena which is known as polarization of light. Polarization of light. Now these three phenomena were also observed which the light shows, but इन तीनों में से कोई भी फिनोमिना ऐसा नहीं है जिसको कि हम न्यूटोनियन फिजिक्स से, यानी कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पसल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग कॉर्पसल्स, इस फिनोमिना से हम एक्सप्लेन कर पाए, ऐसा इन तीनों में से कोई भी फिनोमिना नहीं था. इन द मीन टाइम 1670 probably 1678 के अराउंड क्रिश्चियन हाइगन्स ने बताया कि लाइट को अगर हम कॉर्पसल्स का बना हुआ ना मान के, अगर हम ये मान के चलें कि लाइट हैज अ वेव नेचर, यानी लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल होती है, तो फिर हम बहुत से फिनोमिना को इस वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो मैं इसको एक बार इरेज करके आपको बता रही हूँ कि वेव थ्योरी में हमने क्या क्या एक्सप्लेन किया.
So if we consider that light is a wave, as जैसे मैंने अभी बताया कि क्रिश्चियन हाइगन्स ने कहा कि हम लाइट को अगर हम वेव एज्यूम कर लें तो फिर इस फिनोमिना मतलब वेव मान के हम लाइट के दो फिनोमिना यानी कि रिफ्लेक्शन और दूसरा फिनोमिना रिफ्रैक्शन, इन दोनों फिनोमिना को हम इजिली वेव नेचर से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात यह है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हमने क्लासिकल फिजिक्स से भी एक्सप्लेन कर लिया जो न्यूटन की फिजिक्स थी, लेकिन वेव नेचर से भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हम प्रूव, इन दोनों फिनोमिना को हम सही प्रूव कर पा रहे हैं कंसिडरिंग लाइट टू बी मेड अप ऑफ अ वेव। देन इसमें एक डिफरेंस था, जब हम न्यूटोनियन फिजिक्स की बात करते हैं तो उसके अंदर ये माना जा रहा था कि लाइट जब रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करके जाएगी तो मान लेते हैं लाइट की स्पीड रेयरर मीडियम में v1 है और लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में v2 है, यानी कि चेंज इन स्पीड होगा, लेकिन ये माना गया कि डेंसर मीडियम में जो स्पीड है दैट विल बी ग्रेटर देन द रेयरर मीडियम, ऐसा न्यूटोनियन फिजिक्स कहती है। लेकिन जब वेव नेचर को कंसिडर किया गया, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी कि कैसे रिफ्रैक्शन फिनोमिना में जो कंट्रास्ट था इसका वो हमने ऑब्जर्व किया, बट अभी फिलहाल मैं उसको खाली लिख रही हूँ कि रिफ्रैक्शन में ऐसा मिला कि अगर लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करके जाती है तो इसकी स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है डेंसर मीडियम में वो कम होती है एज कंपेयर टू what it was in the rarer medium. तो V2 is lesser than V1. तो अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं हो, यानी ये प्रूव हमने किया, रिफ्रैक्शन का लॉ बनाया और वहां से निकाला कि V2 will be lesser than V1, यहां पर हमारे पास था V2 is greater than V1, पर जब तक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ना आ जाए, प्रूव ना हो जाए कि कौन सा वाला इनमें से ठीक है, तब तक हम ये नहीं बता सकते कि वेव थ्योरी हमारी ठीक चल रही है या जो है न्यूटोनियन फिजिक्स हमारी ठीक चल रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी, यानी अभी तक भी वेव ने इन दोनों फिनोमिना को एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन क्रिश्चियन हाइगन्स की इस थ्योरी को लेते हुए बहुत ज्यादा विवाद हो रहे थे। कारण ये, नंबर एक तो हमारे पास इस बात को, हमारे पास जस्टिफिकेशन नहीं था क्योंकि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पहले नहीं आ रहा था वैल्यू का, और दूसरी खास बात ये थी कि उस समय तक न्यूटन की अथॉरिटी थी फिजिक्स में। तो अगर कोई बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट थ्योरी हमारे सामने आ गई है तो उसको एक्सेप्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट थ्योरी थी न्यूटन से और न्यूटन की अथॉरिटी उस टाइम चल रही थी, तो इस थ्योरी को इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं किया गया। दो तीन चीजें इसके सपोर्ट में आई, जैसे कि थॉमस यंग, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये एक एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने और इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि जो बिहेवियर या जो पैटर्न हमें नजर आ रहा है उस एक्सपेरिमेंट में, जो लाइट बिहेवियर शो कर रही है, वो सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर लाइट का वेव नेचर हो। तो आप एक एक करके इस चीज को समझते जाएं। हमने अभी तक ये बात की है कि न्यूटन के फिजिक्स में लाइट वॉज मेड अप ऑफ कॉर्पसल्स एंड लाइट यूज्ड टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। फिर मैंने ये बताया कि लाइट अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रेयरर मीडियम। ये बात थी क्लासिकल फिजिक्स में। उसके बाद वेव थ्योरी आई जो कि क्रिश्चियन हाइगन्स ने दी थी, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों प्रूव हो गए, लेकिन रिफ्लेक्शन में ये बात आई कि वेलोसिटी डेंसर मीडियम में लाइट की कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू द वेलोसिटी इन द रेयरर मीडियम। लेकिन वेव थ्योरी को एक्सेप्ट करने में दिक्कत आ रही थी बिकॉज ऑफ न्यूटन्स अथॉरिटी। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बिकॉज ऑफ न्यूटन्स अथॉरिटी
ओवर फिजिक्स, क्योंकि इतने सालों से वही फिजिक्स के बहुत सारे लॉज दे रहे थे एंड विच वर ऑलरेडी वेरी वेरी गुड, जो कि एक्सेप्टेबल थे और जिन्होंने बहुत ज्यादा फिजिक्स में हमें हेल्प की है। तो न्यूटन की अथॉरिटी की वजह से हम वेव को इतनी जल्दी इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसकी एक्सेप्टेंस के लिए हमारे पास एक और साइंटिस्ट ने हेल्प की जिनका नाम था थॉमस यंग। इन्होंने एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि जो पैटर्न हमें नजर आया, जो लाइट ने बनाया पैटर्न, वो सिर्फ तभी पॉसिबल था अगर लाइट का वेव नेचर हो। सिमिलरली डिफ्रैक्शन पैटर्न्स भी, जैसे मैंने ऊपर लिखा था पहले, डिफ्रैक्शन पैटर्न भी हमें लाइट ने शो किया, जो कि हम धीरे धीरे पढ़ेंगे भी कि क्या होता है। जो कि डिफ्रैक्शन पैटर्न भी शो किया, वो भी तभी सिर्फ पॉसिबल था अगर लाइट का वेव नेचर हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वेव के सपोर्ट में ये वाला जो थॉमस यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, जिसमें उन्होंने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट दिखाया, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और दूसरा एक डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी हमने दूसरा फिनोमेना ऑब्जर्व किया। ये दोनों इस बात का प्रूफ थे कि लाइट का वेव नेचर है। अब ये भी प्रूव हो गया, यानी इसके सपोर्ट में ये थ्योरी आ गई। लेकिन फिर भी अभी तक भी हम वेव को एक्सेप्ट इतनी जल्दी नहीं कर पा रहे थे, जबकि ये दोनों एक्सपेरिमेंट भी उसको सपोर्ट कर रहे थे। उसका कारण ये था कि तब तक ये माना गया था कि लाइट जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। तब तक यही माना जाता था कि लाइट, कोई भी जो वेव होती है, अगर हम इसको वेव मान रहे हैं, तो वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम पार्टिकल्स की जरूरत होती है। अब क्योंकि लाइट की बात हो रही थी और लाइट तो सन से भी आ रही है, और सन से जब तक एटमॉस्फेयर नहीं आ जाता तब तक वैक्यूम है, तो लाइट वेव वैक्यूम में ट्रेवल करके कैसे आ पा रही है, वो फिनोमिना किसी को क्लियर नहीं था। इसलिए भी हम वेव थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कुछ सालों के बाद जब मैक्सवेल, आपको मैंने एक चैप्टर में मैक्सवेल के बारे में भी पढ़ाया था, जिन्होंने ये बताया था कि लाइट वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। तो साइमल्टेनियसली जब इसके बाद जब मैक्सवेल ने ये बोला कि लाइट वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों ऑसिलेट करते हैं, और दोनों एक दूसरे को, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जब वेरी करता है और ऑसिलेट करता है तो वो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को प्रोड्यूस करता है। और ये दोनों जब ऑसिलेशंस इनमें होते हैं तो ये एक पर्टिकुलर थर्ड डायरेक्शन में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये ट्रेवल करते हैं, और इसकी वेलोसिटी c होती है विच इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, विच इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, और ये वैक्यूम में है, वैक्यूम में है। तो जब ये बात प्रूव हो गई कि लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं, तब हमने वेव थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी तक मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था इनिशियली किस तरीके से पहले हम लाइट को वेव नहीं मानते थे, और क्रिश्चियन हाइगन ने हमें प्रपोज किया कि नहीं वो वेव है, और फिर बहुत से और लोगों ने उसके सपोर्ट में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे इंटरफेरेंस का और डिफ्रैक्शन का। तो ये प्रूव हुआ कि लाइट का वेव नेचर है। और देन फर्दर मैक्सवेल की इस थ्योरी से कि लाइट वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं, तो हमने यहाँ से इस बात को कंफर्म कर दिया कि हाँ, लाइट जो है वो वेव की तरह ट्रेवल कर सकती है, लाइट हैज अ वेव नेचर ऑल्सो।